Hello student. Today we shall discuss that what are actually the case tools, what are the requirement of these tools, what does they do, and how they were developed. And different we shall discuss the different categories of the case tools and their advantage and their disadvantages. So we start with the definition. So nowadays everything has to go faster because of the increasing speed of the changing market demand, and new market product replace old one much अर्लियर देन बिफोर. तो आप जानते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारी जो चीज़ें हैं बहुत तेजी से चेंज होती हैं और मॉडिफाई अपग्रेड होती हैं. और देयर आर टाइम्स व्हेन देयर इज अ due to competition and due to get a competitive edge, we need to develop the software in less time in comparison to our software competitor, and to meet the client needs and to satisfy the client. And for that we need some help. And these things that are also applicable in the field of software engineering, where we need some tools which can make the coding development coding activity faster than the normal manual approach. So we take help of some of the tools. These tools, case tools are example of one, like are example which can be examples of tools which can be used to generate code. And thus the production line okay, and the production line have to be developed faster. So in past time software system were built using the traditional development technique, means manually they use code and it is requirement design then coding, but that was very time consuming. Nowadays a new kind of tools that is called the computer aided software engineering or case tools have been developed, which are used to speed up the software system building process. And it is a new concept of designing software introduced in 70s. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो आप लोग बनाते हैं कोडिंग टेक्निक करते हैं, उसके अंदर आप लोग सब चीजें मैनुअली ही करते हैं कोडिंग का पार्ट. तो मैनुअली कोडिंग करने पे ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत एफर्ट. और आज के मार्केट इतना स्पीड से डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टूल का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं केस टूल्स या कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स. तो ये टूल्स जो होते हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 70s में. तो दीज टूल्स आर यूज्ड टू हेल्प द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो इससे हम लोग कुछ ये डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस में बहुत हेल्पफुल होते हैं. And software system that are intended to provide automated support for software process activities. कुछ प्रोसेस में ये आपके लिए ऑटोमेटिक कोड जनरेशन में भी यूज होते हैं और एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. Automated support is that we use some software to develop another software. Means there are some portion of the code that can be generated automatically with help of these tools. We need not to write each and every line manually. Instead, we take help of these tools, and we can automatically generate corresponding code, and with slight of modification we can get the executable code. तो इनकी जरूरत क्यों होती है, केस टूल की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज द सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलवेज लुकिंग फॉर सच केस टूल्स दैट हेल्प देम इन मैनी डिफरेंट वे ड्यूरिंग द डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर. जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत सा प्रोग्राम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कुछ पोर्शन आपका मोनोटोनस हो जाता है या रूटीन हमें आ जाता है, बार बार करना पड़ता है. ऐसे पोर्शन जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर को या तो बोर फील करते हैं या रूटीन फील करते हैं, बार बार एक ही चीज इटरेटिवली परफॉर्म करना पड़ता है, या some portion that can be done with slight modification of the previous set of codes. तो वहां ऐसी जगह पे हम लोग कुछ ऐसे केस टूल्स का यूज करते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने अप्रोच का सॉफ्टवेयर को डेवलप कर और कुछ ऑटोमेटेड कोड प्रोवाइड करके दे कैन अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर को केस टूल समझते हैं and prepare good end product that efficiently fulfill the user requirement. तो मेन बात है केस टूल्स जो होते हैं वो आपके समझते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर है एंड वो एक अच्छा एंड प्रोडक्ट तैयार करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट. तो केस टूल्स जो होते हैं आपके प्रोवाइड्स द वे दैट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो इनको यूज करने, इस टूल का यूज करना क्लाइंट नहीं कर सकता, इनको डेवलपर ही यूज करते हैं.
तो डेवलपर क्या करते हैं, अपने जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली इन टूल्स का यूज करते हुए अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्टर और अपने कुछ कुछ पोर्शन को ऑटोमेटिक कोड जनरेशन करके यूज करते हैं। तो दीज टूल प्रोवाइड कंप्यूटराइज सेटिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपर टू एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड देन डिजाइन इट सिस्टम मॉडल। तो ये जो टूल्स होते हैं ये कंप्यूटराइज सेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं और इससे आप प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं और उसके डिजाइन को भी इसको क्रिएट कर लिया जाता है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर का एक डिजाइन आर्किटेक्चर प्रेजेंट कर दिया जाता है और सॉफ्टवेयर डेवलपर इस प्रॉब्लम को एनालाइज करके भी वो उसको अच्छे से मॉडिफाई कर ले, एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। मतलब प्रॉब्लम को आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने एक डिजाइन का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम मॉडल प्रेजेंट कर देते हैं। तो केस टूल्स जो होते हैं, केस इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेड मेथड टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो केस जो आपका है कंप्यूटर असिस्टेड मेथड है टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये ऑर्गेनाइज करने के काम में आता है जो डिफरेंट आपने डेवलप किए हैं, मॉड्यूल डेवलप किए हैं, एंड टू कंट्रोल भी करता है और उस सॉफ्टवेयर को कि वह सही से हो रहा है कि नहीं कर रहा, बाय एनालाइजिंग द सॉफ्टवेयर मॉडल स्ट्रक्चर। खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में जिसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर मैनी पीपल्स हु आर इन्वॉल्व विथ, वहां पर आप केस टूल्स से आप अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो यूजिंग केस अलाउ डिजाइनर, कोड राइटर, टेस्टर, प्लानर एंड मैनेजर टू शेयर अ कॉमन व्यू ऑफ वेयर अ प्रोजेक्ट स्टैंड एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो अलग अलग टीम्स जब होती है तो वो सॉफ्टवेयर का सबका व्यू अगर अपना डिफरेंट होगा तो फाइनली जब आप उनको इंटीग्रेट करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमारा बहुत ही अलग नजर आएगा। टू मेक अ यूनिफॉर्म ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, केस टूल्स आर वेरी यूजफुल। तो इसमें हम एक कॉमन व्यू प्रोवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट मैनेजर, टेस्टर, प्लानर, राइटर, कोड राइटर एंड डिजाइनर्स, और जिसकी वजह से वो फाइनली हर स्टेज के ऊपर अपने डेवलपमेंट को करते समय एक कॉमन व्यू पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके सॉफ्टवेयर में आपकी एक कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी वो रहती है, एक स्टाइल जो रहता है कॉमन रहता है। तो वाई केस टूल्स आर डेवलप्ड, इसको बनाया क्यों गया? द मेन पर्पज ऑफ केस टूल इज टू डिक्रीज द डेवलपमेंट टाइम एंड द कॉस्ट एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसके तीन ऑब्जेक्टिव हैं। पहली बात तो इसमें कुछ मैंने पोर्शन का कुछ ऑटोमेटेड दे देता है, कुछ एनालिसिस करता है, तो ये सब काम करके डेवलपमेंट टाइम आपका कम हो जाता है और कॉस्ट भी कट जाती है, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑटोमेटिक होगा तो डेफिनेटली है कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पे, ह्यूमन एफर्ट रिसोर्स बचेगा तो वहाँ टाइम बचेगा, तो इससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ ही प्रॉपर एनालिसिस कर सकता है सॉफ्टवेयर के डिफरेंट मॉड्यूल्स में, सबको ये बीच में कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे बढ़ता है और एनालाइज कर लेता है। तो इससे हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है, इनहेंस हो जाती है और उसके अंदर आप लोग को एक सारे पार्ट्स मॉड्यूल में एक यूनिफॉर्मिटी मौजूद होती है। तो केस टूल्स जो हैं आर डेवलप्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। केस टूल्स को बनाने के रीजंस क्या क्या है? फर्स्टली क्विक इंस्टॉलेशन। इसको आप बनाते हैं तो इसमें इंस्टॉलेशन हमारी ज्यादा अच्छे से होता है क्योंकि वो बेटर वे में डिजाइन होता है। टाइम सेविंग बाय रिड्यूसिंग कोडिंग एंड टेस्टिंग टाइम। तो मैंने बताया कि जैसे कि इसके अंदर एनालिसिस कर लेता है, टेस्ट कर लेता है मशीन से, तो ऑटोमेट टूल्स होते हैं जिनसे हम लोग कोडिंग करने वाले टाइम को और टेस्टिंग करने वाले टाइम दोनों को ही एफिशिएंटली रिड्यूस कर देते हैं। इनरिच ग्राफिकल टेक्निक एंड डेटा फ्लो। ये साथ साथ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप लोग का हो गया गैंट चार्ट और या आप लोग का पर्ट चार्ट, डिफरेंट गर्ट चार्ट, अलग अलग तरह के, और डेटा टीएफटीज वगैरह साथ में रिक्वायरमेंट को अच्छे से एनालाइज करके एनालिसिस करके जनरेट कर देता है। तो इससे आपकी ग्राफिकल टेक्निक्स होती हैं और वो स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करता है, तो वो आपका बेटर डिजाइन बनता है, बेटर डीएफटी, बेटर आपके पर्ट चार्ट और ये सब एनालाइज करके अच्छे से बना लेता है। इनहेंस्ड एनालिसिस एंड डिजाइन डेवलपमेंट। तो ये स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन कपलिंग और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ये डिजाइन को एनालाइज, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आईएफ वगैरह उन सब पॉइंट्स के बेसिस पे अपने ग्राफ डिजाइन को अच्छे से एवेल्युएट करता है, उनको एनालाइज करता है, और जिससे आपका डिजाइन का प्रोसेस जो होता है अच्छा और बेटर हो जाता है। क्रिएट एंड मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स।
इसके हेल्प से आप अपने कई डॉक्यूमेंट के पार्ट डॉक्यूमेंटेशन वर्क को ऑटोमेटिक कर सकते हैं और क्रिएट और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली कई बार आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑटो जनरेट हो जाता है और वो मैनिपुलेट भी हो जाता है। तो स्पीड ड्यूरिंग द सिस्टम डेवलपमेंट इंक्रीजेस, इससे सिस्टम को डेवलप करने की स्पीड जो हमारी होती है वो अच्छी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा इंस्टॉलेशन फास्ट हो जाता है, टाइम सेविंग होती है क्योंकि कोडिंग का काम टाइम बचता है, टेस्टिंग का भी काम ऑटोमेटेड होता है तो उससे हमारा कोडिंग और टेस्टिंग का टाइम बचता है। कई ग्राफिकल टेक्निक जैसे पर्ट गट और आपका आपका गैंट चार्ट या आपका डीएफटी ये वगैरह इससे ऑटोमेटेड क्रिएट हो जाते हैं और ये ज़्यादा अच्छे बेटर टेक तरीके से बनते हैं। साथ ही साथ ये अपने स्ट्रक्चर को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे चेक करके आपके डिज़ाइन में शॉर्टकमिंग्स को रिमूव करता है, उसको एनालाइज करता है, तो ये आपके डिज़ाइन को ज़्यादा बेटर बनाता है। और इसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं कई पोर्शन के लिए, और आप कई बार चेंजेस करने पे उसमें आप स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट में भी ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन हो जाता है और इससे आपका डेवलपमेंट प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है। तो हाउ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टूल्स, तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो इसका जैसे आप लोगों को पढ़ा कि रैड मॉडल था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, उसमें आपको फास्ट डेवलपमेंट होता है, टाइम कम होता है, तो वहां पर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं टू डिजाइन अ बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन लेस टाइम। और टेस्टिंग में भी इट हेल्प्स इन इम्प्रूव द टेस्टिंग प्रोसेस थ्रू द ऑटोमेटेड चेकिंग एंड सिंप्लीफाइड प्रोग्राम मेंटेनेंस। तो मैंने बताया कि इसमें टेस्टिंग का ऑटोमेटेड होती है और एनालिसिस भी होती है, तो ये आपके टेस्टिंग के काफी वर्कलोड को कम कर देता है और उसमें लगने वाले टाइम को भी काफी रिड्यूस कर देता है। और डॉक्यूमेंटेशन अनदर पार्ट है, टेस्टिंग तो ऑटोमेटिक करता ही, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन का काम भी ये बहुत अच्छे से करता है एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी एंड इंश्योर द कंप्लीटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये आपके सॉफ्टवेयर में क्वालिटी जैसे कॉमन पॉइंट के साथ आगे बढ़ता है तो उसको आप डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करता है और तो डॉक्यूमेंट भी बना देता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज को बिना बोर हुए अच्छे से करता है, डिटेलिंग के साथ करता है, तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क को भी क्वालिटी को भी काफी इनहेंस कर देता है। अब इसके साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते समय आपको बताया कि डिफरेंट ग्राफिकल टेक्निक्स के साथ ये बेटर डिजाइन प्रोड्यूस कर सकता है और ज्यादा एक्टिविटीज को बीच में और रिलेशन गैंट चार्ट पर्ट चार्ट जो मैंने आपको डीएफडी बताया ज्यादा बेटर वे से ऑर्गेनाइज कर सकता है, गैंट चार्ट पर्ट चार्ट फॉर्म बना सकता है और आपकी एक्टिविटीज में जो सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके बेस्ट चार्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। एंड इट रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसमें इजी टू मेंटेन होता है, टाइम कम लगता है, पोर्शन ऑटोमेटिक हो जाता है और ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे इसकी कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है, कई पोर्शन से आप लोग इजीली कर पाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो इसमें ऑटोमेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द डेवलपमेंट टीम। तो हमारा इससे ऑब्वियस सी बात है हमारी कोडिंग फास्ट हो जाएगी, टेस्टिंग फास्ट होगी तो काम बढ़ जाता है और कई एक्टिविटीज आप लोग इसके थ्रू भी परफॉर्म कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इसके थ्रू एनहेंस हो जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारी मेजर कैटेगरीज सॉफ्टवेयर केस टूल्स की क्या क्या हैं। तो केस टूल्स में हमारे कई अलग अलग कैटेगरीज ऑफ टूल्स हैं, जैसे कि इसके अंदर एक होता है डायग्राम टूल्स, कुछ होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होंगे वेब डेवलपमेंट टूल्स, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स एंड मेंटेनेंस टूल्स। तो पांच आपको मैंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया, डायग्राम टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स, मेंटेनेंस टूल्स एंड वेब डेवलपमेंट टूल्स। तो अब हम देखेंगे डायग्राम टूल्स। तो डायग्राम टूल्स क्या होते हैं, दीज टूल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर system component data and control flow among various software component and system structure in graphical form। तो ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट जो आपके सॉफ्टवेयर में है जो स्ट्रक्चर है उसको ग्राफिकल फॉर्म में शो कर देते हैं, जैसे इससे ईआर डायग्राम, डीएफडी या फ्लो चार्ट बहुत ही एफिशिएंटली बनाने में हेल्प मिलती है। ये केस टूल्स होते हैं जो डायग्राम टूल्स के लिए काम करते हैं, ये बहुत स्मार्टली इसको बना के बहुत डिटेलिंग के साथ आपके सामने रेडी कर देते हैं, इससे आपका एफर्ट बच जाता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन। जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट लगेगी, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, उसके प्रोजेक्ट में किस एक्टिविटी में कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा, क्या शेड्यूल होगा, कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, क्या वो डेडलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और हम अपने रिसोर्स को किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की बात करें तो इसमें क्रिएटिव प्रो ऑफिस एक टूल्स है जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन टूल्स की बात। डॉक्यूमेंटेशन टूल्स में बात करें, डॉक्यूमेंटेशन टूल जनरेट्स डॉक्यूमेंट फॉर टेक्निकल यूजर एंड एंड यूजर। जैसे डॉक्यूमेंटेशन एक काम है जिसको हम शायद ह्यूमन बीइंग बहुत डिटेलिंग में नहीं करना चाहता और कई जगह बोर होकर शॉर्टकट करते हैं, तो ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आगे बढ़ता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है और कई जगह ऑटोमेटिक कोड भी जनरेट कर देगा। तो ये आपके लिए आपका ट्रेनिंग मैनुअल, इंस्टॉलेशन मैनुअल, यूजर मैनुअल कैन बी जनरेटेड बाय द डॉक्यूमेंटेशन टूल। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको वो बहुत ही इलेबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके जनरेट कर सकता है विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही अच्छा काम करता है ये टूल्स। जैसे डॉक्टर एक्सप्लेन, ये आपका एक टूल है जो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम यूज किया जा सकता है। अब वेब डेवलपमेंट टूल्स, तो वेब डेवलपमेंट टूल्स में आपके क्या हैं? दीज टूल्स आर असिस्ट इन डिजाइनिंग वेब पेजेस विद ऑल अलाइड एलिमेंट लाइक फॉर्म्स, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, ग्राफिक एंड आइकन। हम लोग जानते हैं आजकल कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो वेब पेजेस में यूज होती हैं, जैसे कि कुछ स्क्रिप्ट कोड होते हैं, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, या कुछ फॉर्म्स होते हैं, या कुछ टेक्स्ट होते हैं। ये सारे चीजें आप बार बार यूज करते हैं तो उसको जनरेट करना, बार बार जनरेट करने की लिखने की जरूरत नहीं है। These tools, web designing tools, are used to design these automatically whenever we require them. So web tools also provide a preview of what is being developed and how will it look after completion. तो इसमें आप कोड करते समय आपका एक प्रीव्यू भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है कि फाइनली आपका प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं एडोब एज इंस्पेक्ट। एडोब एज इंस्पेक्ट का यूज आप लोग वेब डेवलपमेंट टूल के तौर पे करते हैं। एक केस टूल है एडोब एज इंस्पेक्ट। अब क्वालिटी एश्योरेंस टूल, तो क्वालिटी एश्योरेंस बहुत जरूरी है आज के टाइम में, कॉम्पिटेटिव टाइम में। सॉफ्टवेयर में हम डेफिनेटली क्वालिटी करते हैं, नहीं तो अदरवाइज किसी भी प्रोजेक्ट को क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा। तो क्वालिटी चेक करते समय हम लोग थोड़ा सा बायस होते हैं कि डेवलपर अपने प्रोडक्ट में कमियां कम ढूंढते हैं, पर ये कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से कंपेयर और एनालाइज कर सकता है और हमें बेटर व्यू दे सकता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन इज मॉनिटरिंग द इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड मेथड्स डेवलप्ड to and adopted to develop the software product in order to ensure conformance of the quality as per organization standard। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफाइंड स्टैंडर्ड होंगे उससे वो उसको बहुत माइन्यूटली मेजर करेगा। नो बायसिंग, नो बाईपासिंग, और हम किसी नो कॉम्प्रोमाइजिंग। तो इसमें आप लोग किसी भी क्वालिटी पैरामीटर को इग्नोर ना करते हुए ये आपको स्टैट्स फॉर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट शो कर सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हुआ है वो एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो इसके लिए जो टूल्स यूज होता है दैट इज JMeter। अब मेंटेनेंस टूल्स, तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टूल्स की बात करें तो ये आपको सॉफ्टवेयर जब भी डेवलप किया जाता है तो उसमें कुछ बग्स आते हैं, एरर आते हैं, उसमें कुछ अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। तो मॉडिफिकेशन, मेंटेनेंस इज अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो मेंटेनेंस के लिए भी इसमें हेल्प और फीचर प्रोवाइडेड करते हैं। और कुछ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट इज डिलीवर्ड। तो इसके लिए बगजिला फॉर डिफेक्ट ट्रैकिंग, तो इसमें आप अपने डिफेक्ट को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से, और उसको करेक्ट करके आप अपना आगे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका बगजिला जो आपका है तो इज अ टूल टू फाइंड आउट द एरर और बग इन द प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरिंग। तो ये मेंटेनेंस टूल में भी यूज होता है। अब एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो केस टूल इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। केस टूल से हमारी क्वालिटी तो बढ़ ही रही है, क्वालिटी पैरामीटर्स चेक हो रहे हैं टूल से, हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि हमारा टेस्टिंग का टाइम, एनालिसिस का टाइम, ये सब चीजें कम हो जा रही हैं, तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। प्रोड्यूस सिस्टम दैट मोर क्लोजली मीट यूजर नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो ये यूजर मीट और उसके रिकॉर्डिंग को एनालाइज करके बहुत जल्दी अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क काम को बहुत डिटेलिंग के साथ कर देता है। तो हम अपने सिस्टम के को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, और DFD वगैरह ग्राफिक बहुत अच्छे से बनाता है जिससे हम सिस्टम को ज्यादा तरीके अच्छे से समझ पाते हैं और जल्दी समझ पाते हैं। प्रोड्यूस सिस्टम विद एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मैंने पार्ट बताया जो कि थोड़ा बोरिंग काम होता है और कभी कभी शॉर्ट मार दिया जाता है, उस काम को ये बहुत डिटेलिंग के साथ, बहुत बारीकी से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर देता है जिससे प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता रहता है। तो ये आपका अच्छे से काम करता है।
अब इसके बाद इसमें जो आपका है प्रोडक्ट है कि इसके अंदर प्रोड्यूस मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम, इट प्रोड्यूस मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम। एंड इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। और टूल्स आर, तो अब इसमें केस टूल्स जो होते हैं, इससे क्या होता है हमारा एरर करेक्शन में, जैसे बगजिला आपको बताया, तो वो बहुत इजीली आपकी एरर को फाइंड आउट करता है देन एनी डेवलपर। तो ये आपका डेवलपमेंट में एरर फाइंड आउट करने और मेंटेनेंस के काम को भी ये काफी बचा देता है। और बड़े प्रोजेक्ट को मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज करने में और एनालाइज करने में ये बहुत एफिशिएंट है। तो इस तरह से ये हर तरह से ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए, प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोजेक्ट में एरर को ढूंढने के लिए सब चीजों के लिए बहुत ही सपोर्टिव है और बहुत एडवांटेजेस हैं इसके। अब सब एडवांटेज के बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उसमें जो कि बहुत इसके एडवांटेज है कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, केस टूल्स तो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और इजीली मेंटेन नहीं हो पाते हैं। इनको टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है और इसमें कुछ फीचर्स क्वालिटी समझने में टाइम लगता है। और गुड क्वालिटी केस टूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इनका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है और दे रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड ऑफ मेंटेनेंस स्टाफ। तो इनको यूज करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। और मे बी डिफिकल्ट टू यूज विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, हो सकता है कुछ सिस्टम्स के साथ में इसको यूज करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जनरेट हो। तो ये सब ओवरऑल था आपका केस टूल्स के बारे में। तो ये हो गया, तो दैट्स ऑल अबाउट द केस टूल्स।